So I'm saying you that you will be given with a transition diagram or a table will be given to you. So first of all, convert that particular diagram into the respective transition table first, right? Because we have to make some comparisons which are much easier in case of table as compared to diagram. You can't compare two states if you will be given with a diagram, right? So it is very easy to compare two states whenever you will be given with the table, right? So first of all, a table will be given to you. So in this table, we have a total number of 8 states starting from Q naught. Q naught is the initial state because a arrow is there, and Q2 is a final state because Q2 is circled, right? So it is acting as a final state. Next, so after that, step number 1. So in step 1, you will have to check for whether there is any unreachable state. If that unreachable state is there, you will have to remove that state, right? So how you have to check for unreachable state in case of table? You just need to go through the right hand side under 0 and 1. What are the various states that haven't occurred, right? So Q naught, Q1, Q2, Q3 is not there, right? So Q4 is there, Q5 is there, Q6 is there, and Q7 is there. Except Q3, all the states have been listed under 0 and 1. It means Q3 is a state which is acting as a unreachable state, right? Am I clear? सर वो आप क्या बोल रहे थे कि डायग्राम भी आ सकती है? हाँ जी बेटा, अगर डायग्राम आएगी तो डायग्राम को आपको पहले टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? क्योंकि टेबल से कंपैरिजंस करने आसान होते हैं एज कंपेयर टू डायग्राम. So first of all, you need to convert your diagram into the table first and then start with your process. Clear है? Okay sir. Right. चलिए. So next we have check for unreachable states. So we have seen that Q3 is not listed under 0 column and 1 column. So that is why I have listed Q3 as a unreachable state. So इसके भी बेटा नंबर हैं. ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलेंगे. जितने स्टेप्स करे होंगे उतने आपको मार्क्स गेन होंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का आता है पेपर में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज. तो सबसे पहले हम करेंगे इनकी डेरिवेशन ऑफ वैल्यूज आर. सो फर्स्ट वैल्यू वी हैव Q1 डिग्री. So Q1 degree will consist of set of all final states. So in this particular table, we have only one final state, that is Q2, right? Next value is Q2 degree. Q2 degree stands for accept final state. All the states will be listed under Q2 degree. So because Q3 is acting as unreachable state and Q2 is a final state, exclude these states and include all the other states. So Q0, Q1, Q4, Q5, Q6 and Q7. Q2 and Q3 is not in this Q2 degree because we have removed Q3 initially and Q2 is acting as a final state, right? So next we have derivation of pi naught to pi n plus 1. This derivation will continues until you will get pi which is equivalent to the next step, right? आपने पाई की डेरिवेशन वहां तक करते जाना है जितनी देर तक आपका पाई 5 या पाई 4 या पाई 3 बराबर नहीं हो जाता. समझ आ गई बात? So सबसे पहले we have pi naught. So pi naught is a combination of Q1 degree and Q2 degree. So you will have to make separate sets, that is combination of Q1 degree and Q2 degree. So list all the states which you have listed in Q1 degree and Q2 degree. So Q2 का एक सेट था और बाकी states का एक सेट था. Now अब हम करेंगे पाई 1 की डेरिवेशन. तो उसको भी मैंने आपको समझा दिया था लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा करवाने जा रहा हूं आपको कि उस दिन
दिक्कत बहुत आ रही थी, हमारा इंटरनेट की इशू था, ठीक है। So how you will have to derive pi 1? So first of all, that set which will consist of single state, it will be written as such. So Q2 is a set which is having only single state. So write that set as such, right? After that, you will have to compare all the states with the first state. So Q naught will be compared with the Q1, Q naught will be compared with Q4, Q naught will be compared with Q5, Q naught will be compared with Q6, Q naught will be compared with Q7, right? What you have to do? You will have to compare the first element of the set to all the remaining elements, right? So how you gonna check it? Let's see. So first of all, when we compare Q naught with Q1, what you get? Q naught Q1 का जब हम कंपैरिजन करेंगे अंडर जीरो वैल्यू के ऊपर, so what you are getting? Q naught जीरो के ऊपर जा रहा है Q1 पे, Q1 जीरो पे जा रहा है Q6 पे। अब आपको देखना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक सेट का पार्ट है। अगर तो ये एक सेट का पार्ट है तो इसके बाद हम इसकी दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो भी एक सेट का पार्ट होगी, इट मींस Q नोट और Q1 इकट्ठा आ जाएंगे। अगर दोनों में से किसी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो Q नोट और Q1 इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट यू हैव टू चेक, यू विल हैव टू चेक द वैल्यूज for Q0 and Q1 upon the processing of 0 and upon the processing of 1, right? So when we compare Q0 0 के ऊपर जा रहा है Q1 पे, Q1 0 के ऊपर जा रहा है Q6 पे। Q1 और Q6 एक सेट का पार्ट है, ठीक है। Q1 और Q6 एक सेट का पार्ट है, लेकिन इसकी जो दूसरी वैल्यू 1 के ऊपर 5 and 2, it does not belong to same set. Q2 अलग सेट में है, Q5 अलग सेट में है। इसका मतलब क्या है? We have Q not in one set and Q1 in next separate set. Am I clear? क्योंकि है तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्शन वाले सेट अलग से, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले सेट बना रहा हूँ। Next value to be compared is Q naught with Q4. So Q naught with Q4, 1 and 7. Is it in same set? 1 or 7? यस सर। Very good. Second value 5 और 5. वैल्यू सेम है तो वो हमेशा एक सेट का पार्ट ही होगा। It means Q naught के साथ हम Q4 लिख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, whenever you are going to compare whenever you are constructing pi 1, you will have to check for pi node, right? तो अपने सेट्स किसके अंदर देखने हैं? उसके ऊपर वाले सेट के अंदर। जब मैं pi 2 बनाऊंगा तो मैं चेक करूंगा pi 1 को। whenever I am going to construct pi 3, तो मैं चेक किसको करूंगा? pi 2 को, right? So next element to be compared is Q naught with Q5. Q naught with Q5. 1, first value is 1 and second value is 2. There is a contradiction because Q2 belongs to another set. It means it is a part of contradiction. Q5 का अलग set बन गया। Next we are having Q6. Q naught with Q6. 1 and 6. 1 and 6. ये same set का part है। 4 and 5. ये भी same set का part है। इसका मतलब है इस सेट के अंदर आ गया 6। Last but not the least, we are having Q naught with Q7. So first value Q1, second value is Q6. 1 and 6 एक का पार्ट है, लेकिन 5 and 2 एक का पार्ट नहीं है। Q5 and Q2 एक सेट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है ऊपर वाला जो सेट लिखा है वो हो गया कंप्लीट और Q7 नेक्स्ट सेट में है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। Any student is having any doubt? Do clear your doubts. चेतन पाजी,
हेलो सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ जी, एक बार फिर रिपीट से कर रिपीट कर दीजिए। दीजिए। अच्छा रिपीट कर देता हूँ। So what you have to do now, we are constructing pi 1 from pi node, right? So first of all, in pi 1 you will have to write those sets which are single. Single means which are having only one state, right? Which are having only one state. Afterwards you will have to break that set which are having multiple states. So second set is having multiple states, q0, q1, q4, q5, q6, q7. How you gonna break it? You just need to compare first state with all the remaining states. That is, q0 will be compared with q1, q0 with q4, q0 q5, q0 q6 and q0 q7, राइट? तो पाई 1 के अंदर मैंने पहले लिख दिया क्यू नोट Q2 को, उसके बाद Q नोट का Q1 के साथ कंपैरिजन करा। यहाँ पे मैंने जब कंपैरिजन करा, जीरो के अंदर उसकी वैल्यू चेक करी। Q नोट को जब Q1 के साथ कंपेयर करा तो जीरो के नीचे मेरे पास पड़ा हुआ है Q1 Q6। Q1 और Q6 एक सेट का पार्ट है, ये Q1 है, ये Q6 है, दोनों एक सेट में पड़े हैं। इट मींस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट वैल्यू 1 के नीचे यहाँ पे Q5 है और यहाँ पे Q2 है। इट मींस Q5 इधर पड़ा हुआ है, Q2 इधर पड़ा हुआ है। इट मींस वो दोनों अलग अलग सेट के अंदर है। इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। इट मींस Q1 Q नोट के साथ नहीं आ सकता, उसका अलग सेट बना, तो यानी लिख दिया यहाँ पे Q1। नेक्स्ट एलिमेंट टू बी कंपेयर्ड इज Q नोट विद Q4। Q नोट Q4 की पहली वैल्यू है 1 और 7। 1 और 7 एक सेट में है। 1 के नीचे वैल्यू देखी 5 और 5, Q5 और Q5। तो Q5 अकेला एलिमेंट है, वो भी हमेशा एक सेट का पार्ट ही होगा, तो Q नोट के साथ Q4 लिखा गया। नेक्स्ट वैल्यू टू बी कंपेयर इज Q नोट विद Q5। Q नोट विद Q5। सो Q नोट यहाँ पे है, Q5 इधर है, तो इसकी वैल्यू चेक करी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 और 2 एक सेट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब Q5 ने कॉन्ट्राडिक्शन कर दी है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन वाले सेट के अंदर आ गया। नेक्स्ट इज Q6। Q नोट और Q6, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। Q1 और Q6 एक सेट का पार्ट है, Q5 और Q4 एक सेट का पार्ट है, इसका मतलब इसके अंदर Q6 लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू टू बी कंपेयर्ड इज Q नोट विद Q7। Q नोट विद Q7 पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है 6। 1 और 6 एक सेट का पार्ट है, लेकिन Q5 और Q2 एक सेट का पार्ट नहीं है, तो ये वाला जो ऊपर वाला सेट है आपका कंप्लीट हो गया, नीचे Q7 आ गया। ठीक है, अब पाई 1 के अंदर ही आपको इसको भी ब्रेक डाउन करना है। अपने पाई 1 उतनी देर तक छोटा नहीं है जितनी देर तक आपकी कंट्राडिक्शन रिमूव नहीं हो जाती है। समझ आया? You will not leave pi 1 until your contradiction will be over. Remember this point. I'm repeating again. You will not leave pi 1 until your contradiction is not over. That is, you will have no values in contradiction set. इसका मतलब क्या है कि जो contradiction set आपका बना है उसके अंदर भी Q नोट का Q1 के साथ और Q नोट का Q7 के साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आया Q1 Q5। Q1 Q5 इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 2। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर। तो Q1 ऊपर चला गया और Q5 का अलग सेट बन गया है। अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ बेटा, इसको तोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू टू बी कंपेयर इज Q1 विद Q7। Q1 विद Q7। Q1 की पहली वैल्यू है 6 और 6, नो कॉन्ट्राडिक्शन, सिंगल एलिमेंट है। दूसरी वैल्यू है Q2 Q2, अगेन Q2 का एक अलग सेट है और वैल्यू सेम है, इट मींस नो कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर। सो Q1 के साथ Q7 आ गया। अब Q5 अकेला था और अकेली वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं होती है, इसका मतलब क्या है?
कि आपका जो पाई 1 है वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q5। अब मेरे को बताइए कोई डाउट है तो। सर इसको सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी इसको सर एक बार रिपीट कर दो, कॉन्ट्राडिक्शन वाला। बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर जो वैल्यूज आई है ना, 3 वैल्यूज थी उसके अंदर, बोलो कौन कौन सी? Q1 Q5 Q7 Q5 और Q5 Q7। Q7। ये Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्शन वाला सेट भी आपको यहीं पर तोड़ना है। यू विल हैव टू रिमूव द कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? हाउ यू Yes, गोना sir. रिमूव इट? You just need to check for first value with all the remaining values. Check for Q1 and Q5. Q1 और Q5। Q1 की पहली वैल्यू है Q6 और इसकी दूसरी वैल्यू है Q2। Q6 एंड Q2 Q2, एक yes, sir. सेट में नहीं है। पाए नोट के अंदर देखो, Q6 और Q2, Q6 इसमें है और Q2 No, इधर है। sir. इसका मतलब है Yes, sir. Q1 अलग चला गया और Yes, Q5 sir. अलग चला गया, राइट? उसके Yes, बाद sir. Q1 और Q7, Q1 और Q7, Q1 की एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। Q6 और Q6 सिंगल एलिमेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी नहीं आएगी। सिंगल एलिमेंट के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी नहीं आती। Yes, sir. सिमिलरली Q2 और Q2 सिंगल एलिमेंट है, वो अलग सेट में है और दोनों वैल्यूज अलग में है। Q2 और Q2 एक ही एलिमेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई। इसका मतलब इसके साथ Q7 आ गया, ये वाला सेट टूट गया, इसने फर्दर दो सेट्स बना दिए, दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई। क्यों? इसको मैंने चेक कर लिया और ये तो वैसे ही अकेला एलिमेंट है Q5, तो उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ नहीं सकती। सर लेकिन Q2 तो सर अलग सेट में आ रहा है ना? कहाँ, कौन सा? Q2 सर। बेटा Q2 अलग में है ना, तो Q2 Yes, की sir. दोनों वैल्यूज Q2 है, Yes, sir. ये भी Q2 है, ये भी Q2 है, तो वो अलग सेट में है। दोनों वैल्यूज जो है दोनों Q2 है ना, वैल्यू सेम है, तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आई? Yes, sir. समझ आई बात? Okay, sir. ठीक है। लेट सपोज आप सुमित बोल रहे हो, सुमित के जा। Yes, sir. सुमित, लेट सपोज आपकी अवधेश के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है? अब आप अवधेश को बुलाओगे नहीं, ठीक है? आप उसके साथ इकट्ठे नहीं बैठोगे क्योंकि आपकी उसके साथ कंट्राडिक्शन है। अवधेश अलग जगह पे बैठेगा, आप अलग जगह पे बैठोगे, ठीक है? लेट सपोज हम रूम ही अलग अलग कर देते हैं। अवधेश को हम 301 में बिठा लेते हैं, आपको 302 में बिठा लेते हैं। अब जितनी देर तक आपकी लड़ाई रहेगी ना, आप लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते हो। अब आपकी अपने साथ लड़ाई है नहीं है, आपकी अपने साथ लड़ाई नहीं है, तो आपकी चाहे जितनी मर्जी कॉपीज बना दो, आप उस रूम के अंदर मल्टीपल कॉपीज भी बनाकर रहोगे, तो आप उस रूम के अंदर ही रहोगे। समझ आई बात? तो आपकी आपके Yes, sir. साथ कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी नहीं होगी। समझ आई बात? सिमिलरली Yes, sir. वी हैव Q2 एंड Q2, वैल्यू सेम है तो सेट एक ही रहेगा। Q2 जितनी मर्जी टाइम रहे वो तो रहेगा, तो Q2 का पार्ट ही, तो इसके लिए वो Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बनाएगा हमेशा। Okay, sir. समझ आ गई? तो यहाँ पे आपका Yes, sir. स्टेप नंबर 1 फिनिश्ड, that is pi 1 finished. Next we are going to compare pi 2. Now whenever you are going to compare pi 2, you will have to check the set in pi 1. ये ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी बात है। जब भी आपको, whenever you are going to construct the new set, you will have to check for values in upper set, right? You will have to check for values in upper set. So let's start construction of pi 2. So first of all, you will have to write those sets whose answer is single, that is whose sets have only single state. After that, compare those sets which are having more than one element. ठीक है? तो एक सेट मेरे पास ये है, एक सेट मेरे पास ये है, तो उस पर्टिकुलर सेट को उसके पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करना। ये नहीं करना है कि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट का कंपैरिजन करना, नहीं। आपको क्या करना है, Q0 को Q4 के साथ और Q0 को Q6 के साथ, सिमिलरली Q1 को Q7 के साथ कंपेयर करना। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले चेक करें ये Q0 और Q4 सेम रहेगा। Q0 और Q4 को पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है 7। अब पाई 2 बना रहा हूं, चेक किसके अंदर करूंगा, पाई 1 के अंदर। 1 और 7 एक सेट का पार्ट है बेटा, यस और नो? Yes. 1 और 7 इज इन सेम सेट, यस। Yes. इसकी दूसरी वैल्यू देखिए 5 और 5,
तो सेम वैल्यू है, कंट्राडिक्शन कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप Q0, Q4 बड़े आराम से लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर इट्स वैल्यू अंडर 0 एंड Q अंडर 0 एंड इनपुट 1। ठीक है, नेक्स्ट सेट टू बी कंपेयर इज Q0 विद Q6। सो Q0 की पहली वैल्यू इधर है और Q6 की वैल्यू इधर है। नाउ Q1 और Q6 एक सेट का पार्ट है? Q नो इधर पड़ा हुआ है, Q6 इधर पड़ा हुआ है। तो पहली वैल्यू के ऊपर ही क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और Q6 का अलग सेट बना दिया। सिंगल स्टेट है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग स्टेट है, सिंगल स्टेट है, उसको एक सेट के साथ। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। Q0 और Q4 ने कंट्राडिक्शन नहीं करी थी, लेकिन when I have compared Q0 with Q6, it has created contradiction. So that is why I have removed that Q6 from that particular set and represent that state into separate set. Am I clear? यस सर। आगे चलो। Next. हेलो Next we are having Q1 with Q7. हेलो Q1 सर। की पहली वैल्यू है Q6 और Q7 की दूसरी वैल्यू है Q6। Q6 और Q6 सेम सेट है बेटा। पाई 1 में देखना है आपने, सिंगल वैल्यू है तो सेम सेट ही होगा। इसकी दूसरी वैल्यू कंपेयर करते हैं Q2 और Q2, अगेन सेम। इसका मतलब है Q1 और Q7 का सेट भी इकट्ठा रहेगा, टूटेगा नहीं। तो ये आपका पाई 2 कंप्लीट हो गया। पाई 3 की जनरेशन शुरू कर रहा हूं अब। ये वाली चीज उतनी देर तक चलती जाएगी जितनी देर तक आपकी ये सारी की सारी रो ऊपर वाली रो के बराबर नहीं आ जाती है। तो सबसे पहले बेटा आपको लिखने हैं वो वाले सेट्स which are having single state. So we are having Q2 as a single state, Q5 as a single state set, and Q6 as a single state set. Now you will compare all those sets which are having more than one states. So I'm going to compare Q0 with Q4. Let's check. Q0 and Q4 1 और 7 पाई 2 के अंदर देखिए 1 और 7 एक में है। यस, यस 5 और 5 एक में है, सेम वैल्यू एक में ही होगी। इसका मतलब है इसमें भी कंट्राडिक्शन नहीं करी है। तो Q0, Q4 लिखा हुआ जाएगा। लास्ट वैल्यू टू बी कंपेयर्ड इज Q1 और Q7। Q1, Q7 6 और 6 सेम में है। यस 6 और 6 यस सर। वेरी गुड। और 2 और 2, इसका मतलब है Q1 और Q7 ने भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करी है। देखिए अब Q2 और Phi3 बराबर आ गया, therefore Phi3 is equals to Phi2। फर्दर मिनिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा इसके अंदर मैं जैसे लिख रहा हूं आपको पेपर के अंदर वैसे ही लिखना है, राइट? फर्दर मिनिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर हैविंग सेम वैल्यूज। Phi3 is equal to Phi2। ये पूरी की पूरी रो ऊपर वाली रो के बराबर आ चुकी है, तो फर्दर आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है कि आपके टेबल के अंदर जो फालतू स्टेट्स हैं हमने उसकी एलिमिनेशन करनी है। सो वी हैव स्टार्टेड विद 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 एंड 5 स्टेट्स। ठीक है, तो मैंने 3 स्टेट्स की एलिमिनेशन करी है। यहाँ पे 8 स्टेट्स थी इनिशियली मेरे पास, अब मेरे पास आई है टोटल कितनी स्टेट्स? 5। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो इसको रब कर दूं। लिख लिया अपने नोटबुक्स पे? बेटा लेक्चर लिखते हो या वैसे ही सुनते हो? लिखते हैं सर। चलो अच्छी बात है। अब बेटा आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसका मिनिमाइज्ड टेबल बनाना है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्टेट्स आई हैं नंबर 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स आई हैं टोटल आपके पास,
इनको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनेगा आपका, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, रब कर दूं ब्लैक बोर्ड, रब कर दूं। यस सर। 2 5 6 2 नोट 2 4। तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन रहा है अब मिनिमाइज फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्टेट्स आ जाएंगी, स्टेट्स स्लैश सिग्मा 0 और 1। सबसे पहले इनिशियल स्टेट कौन सी थी, Q नोट कोमा Q4। रिमेंबर वन थिंग, now you will have to represent all your states with the square bracket and cannot basis, ठीक है। तो Q नोट को पहला लिखा क्योंकि Q नोट और Q4 इनिशियल स्टेट थी। उसके बाद Q2 आ गया जो कि आपकी फाइनल स्टेट थी, सब सर्कल कर दिया मैंने इसको। उसके बाद आ गया आपका Q3 नहीं था, Q4 लिखा जा चुका है, Q1 कोमा Q7 लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद था Q5 अकेला था और Q6 अकेला था, ठीक है। ये आपका टेबल की एक साइड कंस्ट्रक्ट हो गई। जो आपकी पाई 3 के अंदर स्टेट्स आई है ना, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख लो। उसके बाद क्या करना है आपको, चेक Q नोट 0 के ऊपर किधर जा रहा है और Q4 के ऊपर किधर जा रहा है, ठीक है। क्या चेक करना है, Q नोट upon the processing of 0 it is going to Q1 and Q4 upon the processing of 0 it is going to Q1। और Q1 और Q7 एक सेट है, अलग सेट नहीं है, तो इसके लिए ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट Q नोट 1 के ऊपर जा रहा है Q5 पे और Q4 1 के ऊपर जा रहा है Q5 पे। और Q5 अकेला है, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है, अगर उसके साथ कुछ यहाँ पे होता तो वो भी यहाँ पे लिखना था मेरे। बस वो क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो फर्स्ट रो में। सर स्टेट्स कितना लईਆਂ रैंडमली लईਆਂ कि उदा सर सीरियल वाइज लईਆਂ? बेटा पहले नंबर पे आपको लिखनी है इनिशियल स्टेट, उसके बाद जैसे मर्जी ऑर्डर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक कोई है भी स्टेट कितने मर्जी लिख सकते हो, बट इनिशियल स्टेट हमेशा पहले नंबर पे आना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ Q नोट है। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद मैं Q2 को चेक करने जा रहा हूँ, चेक फॉर Q2 upon the processing of 0। Q2 upon the processing of 0 it is going to Q नोट, but Q नोट is not single, Q नोट is having a one more value that is Q4, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ आया? ये चीज स्पेशली ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, Q2 0 के ऊपर किधर जा रहा है, Q2 0 के ऊपर किधर जा रहा है, Q नोट पे, but Q नोट is having one more state, that is Q नोट is pairing with Q4 now, so that is the reason you can't write Q नोट separately। Am I clear? So with the Q नोट Q4 also occurs। Next we are having Q नोट upon the processing of 1 it is going to Q2, Q2 is single, so write it as singly। Next Q1 0 पे, Q1 0 पे जा रहा है Q6 पे और Q7 0 पे जा रहा है Q6 पे, and Q6 is alone, so write Q6 here। So this table is called minimized transition टेबल। ये लिखना है बेटा पेपर में, अदरवाइज नंबर कटेंगे याद आप। मिनिमाइज ट्रांजिशन टेबल। आफ्टर दैट Q1 upon the processing of 1, Q1 upon the processing of 1 it is going to Q2, and Q7 upon the processing of 1 it is going to Q2, and Q2 is again single। Next Q5 upon the processing of 0 it is going to Q2,
Q5 upon the processing of 6, it is going to Q6. Next, Q6 upon the processing of 0, it is going to Q6, and Q6 upon the processing of 1, it is going to Q4, but Q4 is having one more state, that is Q naught, so write that state alone with, right? So this table is completed. कोई doubt है तो पूछो. Any student is having any sort of doubt, ask me. सर एक बार लास्ट लाइन Q6 का आपने कैसे किया देखिए सेकंड में? टेबल चेक कीजिए. Q6 upon the processing of 0, Q6 upon the processing of 0, it is going to Q6. तो वो Q6 अकेला था ना इधर वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे Q6 अकेला है, तो Q6 अकेला लिखा गया. After that Q6 upon the processing of 1, it is going to Q4, but Q4 is not alone. It is having one more state, that is Q4 Q naught. So Q4 is pairing with Q naught now. So write that state along with. So write Q naught comma Q4 instead of Q4 only, right? So after this you will have to make a transition diagram. ठीक है? So last step, ये अगर पेपर में 10 मार्क्स का आएगा तो ये 2.5 मार्क्स का है टेबल, and another 2.5 marks for, ठीक है? इसकी ना मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूं अभी कंप्लीट. पहले आपने जो मिनिमाइजेशन करी है ना, वो एलिमिनेशन करी है, वो 1 मार्क्स की है, जिसके अंदर आप एलिमिनेशन करते हैं अनरीचेबल स्टेट की. अनरीचेबल स्टेट जब आप रिमूव करोगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा. उसके बाद Q1 डिग्री से लेकर पाई n+1 की जब आप जनरेशन करोगे तो उसके आपको मिलेंगे 4 नंबर. आफ्टर दैट जब आप मिनिमाइज द ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो वो 2.5 मार्क्स का है. जब मिनिमाइजेशन की डायग्राम बनाओगे तो वो 2.5 मार्क्स का है. टोटल आपको 10 मार्क्स मिलते हैं इसमें. समझ आ गया? क्लियर है? 1 + 4 5, 2.5 2.5 5, 5 + 5 10 मार्क्स. सो सर डायग्राम ऑप्शनल नहीं हो सकती? हाँ जी, सर डायग्राम हाँ वो सर बनानी पड़ेगी बेटा. वो इस सर टेबल के बाद डायग्राम बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनाओगे तो 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे. अरे तो बड़ा मुश्किल है फिर. हाँ अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं डायग्राम. तो डायग्राम कैसे बनेगी? सबसे पहले लिखिए इनिशियल स्टेट, वो है हमारे पास Q नोट कोमा Q4. ये दिख रहा है टेबल के ऊपर मैंने जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे? यस Q सर. नोट कोमा Q4 विजिबल है ना? तो इसको देखिए 0 पे कहाँ जा रहा है. ये 0 पे जा रहा है नई स्टेट के ऊपर जिसका नाम है Q1 कोमा Q7. बेटा डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसका मतलब सिंगल स्टेट है. समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं तो ये वाली स्टेट्स आपकी 2 स्टेट्स कहलाएंगी. ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है कि ये दोनों आपकी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं. समझ आ गई बात? सो इसके भी नंबर कटेंगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो ये 1 के ऊपर किधर जा रहा है? ये 1 के ऊपर जा रहा है Q5 पे. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q5. ये आपकी पहली रो की डायग्राम बन चुकी है. नेक्स्ट चेक करेंगे Q2. सो Q2 मैंने एक नई स्टेट बनाई है जो कि फाइनल स्टेट थी, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ Q2. Q2 0 के ऊपर जा रही है इधर और 1 के ऊपर जा रही है अपने आप पे. अ सेल्फ लूप इज देयर. ये 2 लाइंस की डायग्राम बन चुकी है, टिक लगा दी. नेक्स्ट लाइन Q1 Q7, ये 0 पे जा रहा है Q6 पे, तो नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई और ये 0 पे भेज दिया इधर. और 1 पे जा रहा है Q2 पे, 1 पे जा रहा है इधर. 3 लाइंस की 3 रोज की आपकी डायग्राम कंप्लीट. नेक्स्ट वी आर हैविंग 4th रो Q5 हेलो 0 पे जा रहा है Q2 पे हेलो अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ 0.
Q5 हेलो सर हाँ जी गलत डायग्राम बन रहा है। क्या हुआ हेलो डायग्राम शम्मी आलम हाँ जी क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई सर डायग्राम गलत नहीं है डायग्राम है। हाँ जी सर Q1 Q आप Q5 Q1 की बेटा लिख कर भेजो मेरे को क्या प्रॉब्लम है आपकी आवाज क्लियर नहीं है शम्मी सर एक्चुअली Q1 और Q7 वन पे सर 7 से Q2 पे 1 जा रही है ना जाएगा। एक मिनट Q1 और Q7 Q1 सर। और और Q7 Q7 सर वन के ऊपर तो वन में तो Q2 के ऊपर जाएगी ना सॉरी सर। सॉरी सॉरी आपने गलत हो सी गया यस सर। हमने क्या कर दिया वो ऐसे हमने बनाया ही नहीं बेटा सर Q1 वन की और बनी। Q7 का 1 के ऊपर ऐसे नहीं बनाया था ना मिसिंग हो गया था यस ये लो ठीक है अब यस सर 0 पे इधर और 1 पे इधर और Q6 मेरा है ये 0 पे किधर जा रहा है अभी Q6 पे आए नहीं है बाद में बात करते हैं ये गलत मैं सर बताता हूँ ये वाली सर गलत Q5 सर Q5 1 पे जा रहा है Q6 पे। बेटा दोबारा चेक कर लेता हूँ एक मिनट रुको जरा हाँ जी हमारे पास है वी आर हैविंग Q नोट Q4 1 0 पे जा रहा है 1 और 7 बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट Q नोट Q4 1 पे जा रहा है Q5 पे पहली रो बिल्कुल ठीक है आफ्टरवर्ड्स सेकंड Q2 0 पे इट इज गोइंग टू Q नोट Q4 ठीक है और Q2 1 पे अपने आप पे जा रहा है तो लूप लगा दो Q1 Q7 0 पे जा रहा है Q6 पे बिल्कुल ठीक है Q1 Q7 1 पे जा रहा है Q2 पे ये भी ठीक है यहां तक डायग्राम आपकी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट Q5 upon the processing of 0 it is going to Q2 and Q5 upon the processing of 1 it is going to Q6 तो ये वाला एज आपका आ गया ये 1 के साथ समझ आ गया नेक्स्ट Q6 वाली लास्ट रो आपकी पेंडिंग है Q6 upon the processing of 0 it is going to itself so a loop is there with 0 and Q6 upon the processing of 1 it is going to BG now your diagram has been completed अब बताओ कोई डाउट है तो ये आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो गया बेटा ये हो सकता है कि जो डायग्राम मैं बनाऊं वो आपकी सेम ना बने क्योंकि आप हो सकता है कि Q2 को कहीं और लिखूं ठीक है लेकिन एजेस आपके ऐसे ही आएंगे अब कोई डाउट है तो पूछिए सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर एक्चुअली जैसे हमने इसको ड्रॉ किया और इसको मिनिमाइज किया सर इसका रियल टाइम में इसका यूज सर कहाँ पे होगा बेटा एप्लीकेशन। whenever we are constructing simulations करते हैं वहां पे इसका यूज होता है जो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स है वहां पे इसकी बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग में यूज होता है कि जब आपको एक बड़ी डायग्राम गिवन हो उसको आपने मिनिमाइज फॉर्म के अंदर लिखना है रिडक्शन करके वहां पे इसका यूज होता है बैकएंड के ऊपर ये पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया था आपने सागर यस सर। मैंने मैंने आपको इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन बताई थी कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है यस सर। ये समझ आ गई है कि दोबारा बताऊं डायग्राम बताइए फटाफट नहीं सर आगे। आगे आगे सर। चलें चलिए इसके बाद एक पोल है आपके पास तो पोल को मैं शो करता हूं एक मिनट whether we are having two poles instead of one wait for a while लीजिए ये पोल का क्वेश्चन आंसर कीजिए लेकिन उसके लिए मेरे को डायग्राम बनानी पड़ेगी तो आपको बोर्ड देखना पड़ेगा सो बोर्ड के ऊपर आपको देखना है
So minimize the following automata. इसको आपने ना मिनिमाइज कर लेना है, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कितनी मिनिमाइज स्टेट आई हैं। आज का इसके अंदर आपको क्या करना है, पोल में आपको करना है, आसान सा क्वेश्चन है। स्टेट्स नाउ इनपुट्स आर A and B, Q0, Q1, Q0, Q1, Q0, Q2, Q2, Q3, Q1, Q3 is acting as a final state, Q0, Q4, Q5, Q6, Q4, and last two states are Q6 and Q7. ये बना लो बेटा फटाफट अपनी नोटबुक्स पे। सर ये वाले एलिमेंट्स एक बार बोल दो, समझ नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करना जरा। ये पोल विजिबल नहीं है, ये पोल को मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्टेट्स हैं Q0 से लेकर Q7 तक, where Q0 is acting as an initial state and Q3 is acting as a final state, ठीक है। जिसके साथ एरो होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके साथ एरो होता है वो आपकी इनिशियल स्टेट होती है, जिसके ऊपर सिंगल सर्कल होता है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है, राइट। तो नीचे है पहला एलिमेंट Q1, Q0, Q3, 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 Q6, Q5, Q6, डन। आफ्टरवर्ड्स B के नीचे है Q0, Q2, Q1, Q0, Q5, Q4, Q6 एंड Q3। क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन आपको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है वो आपके पोल के ऊपर, इसका आंसर कीजिए। ये मिनिमाइजेशन बेटा बाद में कर लेना, अभी आपको सिर्फ बताना है कि अनरीचेबल स्टेट अगर है तो वो कौन सी है, अगर नहीं है तो उसका आंसर कर दीजिए, बस ये आपको बताना। मिनिमाइजेशन इसकी बाद में कर देना। सर हाँ जी, सर मेरा पोल शो नहीं हो रहा है। पोल शो नहीं हो रहा है, नो सर। दोबारा लॉगिन करके देखो। ओके सर। So 44 students have answered the question। बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, ये आधे मिनट का काम है। आधे मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट अनरीचेबल है, कौन सी नहीं है। यू आर टेकिंग टू मच टाइम।
So 15 seconds more, only 15 seconds. Hurry up, answer. Thank you. तो देखिए, how you are going to find out which state is not in right hand side. Just count the states from initial state. So Q naught is there, Q1 is there, Q2 is there, Q3 is there, Q4 is there, 5 is there, 6 is there, but there is no Q7. It means Q7 is acting as a unreachable state, because upon the processing of upon the processing of A and B, Q7 has not been listed on the right hand side. Right? समझ आ गया? So अभी भी हमारे पास Q4 + 5 + 1 6 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर करा है, whereas 48 students have attempted this question correctly. ठीक है? So with this your chapter number part 1 is finished. पार्ट 1 आपका फिनिश्ड हो गया है. तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसकी आपको मिनिमाइजेशन करनी है. तो यहाँ पे हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा. ठीक है? लेकिन बट ड्यूरिंग दैट ब्रेक आपको क्या बनाना है, उसका पहले टेबल बनाना है और उसके बाद मिनिमाइजेशन करनी है. तो ये आपका पोल 2 का क्वेश्चन है. ठीक है? पोल 2 के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन है मिनिमाइज द फॉलोइंग डीएफए टू रिड्यूस डीएफए. मिनिमाइज द फॉलोइंग डीएफए टू रिड्यूस डीएफए. So diagram is complete. Q naught upon A Q1 Q2 upon processing of P upon processing of P1 this is. तो ये है मिनिमाइज द फॉलोइंग डीएफए टू रिड्यूस डीएफए. इसके अंदर आपको करना है, ये आपका पोल 2 है, ये आपका पोल 2 है. मैं आपको रिफ्लेक्ट करता हूं अभी. सर डायग्राम सर बना लेते हैं उसके बाद. बना लो कोई बात नहीं.
सर हमें मिनिमाइज्ड ट्रांजिशन टेबल बनाना है। हाँ जी बेटा, ट्रांजिशन टेबल प्लस डायग्राम बनानी है। ये पोल का मैंने क्वेश्चन खोल दिया है, ठीक है। डायग्राम तो अच्छा ठीक है। डायग्राम आपको गिवन है ना, तो डायग्राम से कंपैरिजन करने ना मुश्किल होते हैं, तो सबसे पहले इसका टेबल बनाइए, तो उसके बाद आपको मिनिमाइज फॉर्म बनानी है इसकी। इसको अच्छा इसमें मिनिमाइज तो करना है और मिनिमाइज के फाइनल बाद स्टेट ही जो बहुत रिजल्ट आएगा उसका काउंट बताना है आपको। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता रहा हूँ तो इसमें देखना फाइनल स्टेट कितना है वो बताना है। हाँ, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेट बनेगा ना Q1 डिग्री, सबसे पहले आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 के अंदर कि कोई अनरीचेबल स्टेट तो नहीं है। यस, देयर इज वन अनरीचेबल स्टेट, दैट इज Q6, क्योंकि मैं Q6 इनिशियल स्टेट से शुरू करके Q6 के ऊपर कहीं पे भी पहुंच नहीं सकता हूं, क्योंकि एरो नहीं है। इट मींस स्टेप नंबर 1 के अंदर Q6 रिमूव होगी आपकी, राइट। उसके बाद Q1 डिग्री के अंदर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो उसके अंदर आपके पास Q3, Q4, Q5 तीन स्टेट्स आएंगी उस सेट के अंदर। समझ आया? उसके बाद इसकी रिडक्शन शुरू कीजिए, जो कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअली आंसर में मतलब क्या लिखना है, टोटल अनरीचेबल स्टेट लिखना है, टोटल कितना है। कौन से आंसर में? कोई पोल का जो क्वेश्चन है उसमें बेटा, ये आंसर में क्वेश्चन जो किसका मैंने काउंट पिछला लिखना आपको करवाया है ना, वो सारे स्टेप्स परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आपको आंसर आएगा। इस पे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको करने में। ये सीधा ही मेरे को आपने बता दिया ना 7, ये रॉन्ग आंसर है, 7 नहीं है। इसको रिड्यूस कीजिए, 7 तो इसका एग्जैक्ट टोटल काउंट है 1 2 3 4 5 6 7। ये तो ओरिजिनल टेबल के अंदर, ओरिजिनल डायग्राम के अंदर आपके पास 7 है, ये नहीं बताना है। इसको मिनिमाइज तो कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। जो टोटल टेबल में कितने ये बचते हैं, मतलब कितना स्टेट बचता है वो लिखना है। हाँ, मिनिमाइजेशन करने के बाद कितनी स्टेट्स आती हैं वो बताना है आपको। ओके सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, आप काम कीजिए, मैं आया सर जरा। ठीक है सर इसमें दो फाइनल स्टेट है सर इसमें। बेटा, 3 है, 3 सर्कल, तीन, सॉरी। सर्कल 3 है ना, तो 3 है। तो ओके सर। उसका जो सेट बनेगा आपका फाइनल स्टेट का, दैट इज पाई, कौन सा बनेगा सेट? पाई 1, Q1 डिग्री, Q1 डिग्री के Q1 अंदर वो डिग्री Q1 सर, आएगा Q3, Q4, Q Q5। Q4 तो Q5। जब आप पाई 1 करोगे, Q3 Q4 को Q5 के साथ कंपेयर करोगे। समझ आई बात? क्योंकि वो भी सेट बनेगा, तो फाइनल वाला सेट का कंपैरिजन उसके अपने साथ ही होगा। सर पाई नोट नहीं ना आएगा? पाई नोट आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? पाई पाई नोट नोट। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कॉम्बिनेशन ਹੁੰਦਾ है Q नोट डिग्री ਦਾ ਤੇ Q1 डिग्री ਦਾ। हाँ जी समझ आ गई बात? जी चलिए सर। आप काम कीजिए, मैं चाय पी लूं जरा। ओके, यस सर। आई विल ओके बी जी। बैक इन 10 मिनट्स। तो 11:15 मैं पूरे वापस आता हूँ, 11:05 हो चुके हैं। आप ये क्वेश्चन कीजिए, मैं आया। ओके, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप शरारतें करोगे, गाने गुने लगा दोगे, आपका पता नहीं है। आप बहुत डेंजरस बच्चे हो, सीनियर मोस्ट।
हेलो सर, अभी आंसर करना था। हेलो, सर आंसर आंसर करना था भैया। सर आंसर करना था। लीजिए दोबारा आंसर कीजिए। जिन्होंने कर दिया है वो भी दोबारा आंसर कीजिए। उतनी देर तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, मैं समझाऊंगा नहीं ये क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। इसकी जो मिनिमाइज है, सबसे पहले आप रिमूव करेंगे Q6 state because it is acting as a unreachable state, right? Unreachable. After that, the reduced DFA transition diagram is So two states would be. सभी ने आंसर देख लिया ब्लैक बोर्ड पे, तो फटाफट लगे हुए आंसर करने पे। ठीक है, चलो बंद कर दूं अब। 56, 59 के 59, चलो एंड कर दिया। स्टिल 19 और 8 स्टूडेंट्स। 19 और 8 कितने होते हैं? 27। तो 27 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। इसका जो आंसर है दैट इज 4। ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, ये देख लेना। ठीक है, जिनका गलत है, जिनका ठीक है, वेरी गुड। Q6 कहाँ जाएगा सर? कौन सा बेटा? Q6 Q6 तो आएगा नहीं ना, वो अनरीचेबल स्टेट है, वो तो पहले स्टेप के अंदर ही रिमूव हो गया। सर क्यू नॉट नहीं है अनरीचेबल स्टेट। सर Q नॉट अनरीचेबल स्टेट। बेटा इनिशियल स्टेट कभी भी अनरीचेबल स्टेट नहीं होती, वो तो आपका इनिशियल पॉइंट है, वहां से तो आप शुरू कर रहे हो ना। Q नोट, रिमेंबर दिस थिंग, Q नोट इनिशियल स्टेट है, वो आपकी कभी भी अनरीचेबल स्टेट नहीं होगी। उसके अलावा जब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट, अनरीचेबल स्टेट की डायग्राम डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अनरीचेबल स्टेट, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट after the processing of input symbol, we can't reach to that particular state. This thing is called unreachable state. When you don't have any edge, यहाँ पे आपके पास Q6 के लिए कोई भी edge नहीं है। सर A पे तो था ना, A पे और B पे। So Q3, Q4 और Q5 के साथ नहीं होगा? ये स्टूडेंट्स ठीक है, समझ आ गया? डायग्राम को Q6 देखते पे तो हुए एज है ना, Q6 पे एज है। बेटा एज इनिशियल स्टेट से शुरू करके तू मेरे को Q6 के ऊपर पहुंच के बता, पहुंच सकता है? Q6 की तरफ एज आ नहीं रहा, जा रहा है, तो हमने आने वाला एज देखना है। ऐसा है, ये वाली चीज है, ये चीज नहीं है, समझे बात? Q6 की तरफ कोई भी एज आ नहीं रहा इनिशियल स्टेट से, एज जा रहा है इनिशियल इससे ऊपर वाली स्टेट के ऊपर, समझे बात? यशवंत समझ आई बात? सर इसका पाई1 कैसे निकाला है? बेटा उसका मैं सॉल्यूशन आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है, मैंने सेकंड चैप्टर भी खत्म करना है थोड़ी देर में, क्योंकि उसके अंदर थोड़े टॉपिक्स हैं। जी सर, भेज देना सर सॉल्यूशन। हाँ, मैं सॉल्यूशन आपको, मेरे को मैसेज कर देना शाम को, सॉल्यूशन में बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर KLP मिश्रा। The name of the chapter is formal languages. Formal languages. Chapter का नाम है chapter number 4. So the first definition under formal languages is grammar. बोर्ड विजिबल है ना सबको?
बेटा बोर्ड विजिबल है? यस सर। चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू Yes, करते हैं। sir. फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ग्रामर। तो इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने ग्रामर की डेफिनेशन करवाई थी ना, कि सेट ऑफ रूल्स, जो हमने चैप्टर नंबर 1 करा था, बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा, उसके अंदर मैंने बताया था कि ग्रामर क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स। तो इसके अंदर बेटा हम करेंगे टेक्निकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर ग्रामर। सो मैथमेटिकली अ ग्रामर इज रिटन एज 4 टपल्स। तो टपल्स कौन कौन से हैं? वी एन, सिग्मा, पी और एस। सिग्मा की जगह पे आप वीटी भी लिख सकते हो। कई बुक में वीटी लिखा होता है, कईयों में सिग्मा लिखा होता है। वेयर वीएन क्या है आपके पास? सेट ऑफ वेरिएबल्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, सो ऑन अप टू जेड। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ वेरिएबल्स which are written in capital letters, right? Which are written in capital letters, they are called finite non-empty set of variables. Vn stands for finite non-empty set of variables. Next, sigma, Vt, or you can say that sigma, Vt or sigma, finite non-empty set of terminals, finite non-empty set of terminals. तो सबसे पहली बात इसके अंदर, सबसे पहले आ जाते हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स। ठीक है, आपके 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स, और तीसरी बात ऑल दी स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम योर कीबोर्ड लाइक प्लस, माइनस, स्टार, हैश, एक्सेट्रा। सो VT क्या है आपके पास? VT is a finite empty non-empty set of terminals written with digits from 0 to 9, small letters from A to Z, and all the special characters from your keyboard. All the special characters from your keyboard, they are listed under the category of terminals. They are written with VT or sigma. यहाँ तक क्लियर है? सर आगे चलें। Next we have production. P stands for production. Production or rules, it is written by alpha goes to beta. P stands for production or rules. It is written with alpha goes to beta, where alpha comma beta are the strings on V and union sigma. Where alpha comma beta are the strings on V and union sigma. For example, अगर मैं लिखूंगा A goes to small a capital B, तो ये एक प्रोडक्शन है। A goes to small a, ये एक प्रोडक्शन है। A goes to या B goes to C, ये तीनों प्रोडक्शंस हैं। V and union sigma का मतलब क्या है? कि वेरिएबल्स यूनियन टर्मिनल्स। सर समझ आ गया? B goes to डबल सी, ये प्रोडक्शन की एग्जांपल है। इस प्रोडक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। इस प्रोडक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, एक टर्मिनल है। Whereas in this production we are having 2 variables and single terminal. समझ आ गया? And last is S. S क्या है आपका? स्टार्टिंग सिंबल।
starting symbol, or you can say that variable, क्योंकि कैपिटल एस है. डेफिनेशन क्लियर है ग्रामर की? सो अगेन रिपीट कर रहा हूं, वी आर हैविंग 4 टपल्स in case of technical definition of grammar. The first tuple is called vn, the second tuple is called vt or sigma, the third tuple is called capital P, and the last tuple is called capital S. ठीक है, vn है variables, sigma या vt है terminals, p is a production, s is a starting symbol. So next topic is अब इसकी ग्रामर की एक एग्जांपल समझ लो. फॉर एग्जांपल g इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टपल है इसके पास vn, s कोमा a, s कोमा a, सेकंड टपल है a कोमा b, थर्ड टपल है p और लास्ट टपल है s. ठीक है, तो ये चारों टपल लिस्ट आउट कर दिए. वेयर vn is equals to s comma a, vt या फिर sigma is equals to a comma b, p consists of, you need to write down the production. S goes to capital A, where a goes to small b, or you can also say that a b. ठीक है, तो ये आपकी ग्रामर की एग्जांपल है. एंड S इज अ स्टार्टिंग सिंबल इज S, क्योंकि स्टार्टिंग वाली प्रोडक्शन S से मिली. समझ आ गया बेटा? समझ आ गई है? यस और नो? नो सर. हेलो, एम आई क्लियर टू एवरीवन? सर एस दस दो जेड़ा लिखा है. S is a starting symbol. Starting symbol is always written in capital letters. स्टार्टिंग सिंबल मतलब किसी का भी या फिर सिर्फ ऐसी? सिर्फ गिवन ग्रामर का बेटा. यहाँ पे आपकी ग्रामर जो है वो स्टार्ट हो रही है S के साथ. इसकी दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 1 है. अगर दूसरी एग्जांपल है E goes to E plus E, E goes to E star E, and E goes to B. अब इस केस के अंदर ये आपकी प्रोडक्शंस हैं. यहाँ पे आपका स्टार्टिंग सिंबल E है, S नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कहां से शुरू हो रही है? E से. समझ आई बात? जहां से आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती है, दैट थिंग इज कॉल्ड स्टार्टिंग सिंबल. So next topic is Chomsky classification of languages. So Chomsky classification of languages, very important topic. Chomsky classification of languages. So इस केस के अंदर आपके पास 4 तरह की लैंग्वेजेस आएंगी, टाइप 0 से लेकर टाइप 3 तक. ठीक है, टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर. So Chomsky classification of languages consists of 4 types of grammars, starting from type 0, type 1, type 2, type 3, type 3 tak, right? Whereas type 0 and type 1 is having same syntax, type 2 and type 3 is having
same syntax. Done? Am I clear? So Yes, let's sir. proceed with each type one by one. So first of all, type zero grammar. तो इसकी डेफिनेशन मैं बोलने लगा हूं, नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा. टाइप जीरो ग्रामर. A type zero grammar is any phrase structure grammar. Type zero grammar is any phrase structure grammar. टाइप जीरो को हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं. अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर is any phrase structure grammar without any restriction. That is why this is called unrestricted grammar. This grammar is of the form of phi. इसका syntax देख लीजिए. Phi a xi goes to phi alpha xi. ठीक है. सो इसका सिंटैक्स क्या है मेरे पास? phi a xi goes to phi alpha xi where phi is called left context. ये वाला phi और ये वाला phi क्या है? Left context. Next symbol is xi, right context, and a goes to alpha is the replacement string. I'm repeating again. Type 0 is any phrase structure grammar which is having without restriction. ठीक है? Without any restriction. A type 0 grammar is of any phrase structure grammar without any restriction. This grammar is of the type of phi a capital A xi goes to phi alpha xi where phi is left context, xi is right context, and a goes to alpha is a replacement string. इसको कर लिया नोट? एग्जांपल बताऊं इसकी? यस सर. डेफिनेशन समझ आ गई है? सर एक मिनट सर, आ लिखना सर अमर. कर दो सर, इरेज कर दो सर. चलो इसकी मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं. टाइप 0 की फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ए बी कैपिटल ए बी कैपिटल ए बी सी डी गोज टू ए बी कैपिटल ए बी बी सी डी. ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 है. सो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी ओरिजिनल इसके साथ, जब ओरिजिनल सिंटैक्स के साथ इसको कंपेयर करा तो फाई की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए बी, क्योंकि ये वाला ए बी और ये वाला ए बी सेम है. ए बी इज अ फाई. देन वी हैव दिस ए कैपिटल ए बी. ए गोज टू ए बी इज अ रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग. A goes to AB is a replacement string and xi की वैल्यू क्या है हमारे पास? BCD. Remember one thing, don't write equal to over here. ये गलत है, यहाँ पे एरो डालना, बच्चे गलती करते हैं पेपर में. यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालना है बिकॉज ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर एरो लगता है.
instead of equal to. Am I clear? सर ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 1 ग्रामर. एंड वन थिंग मोर, A goes to AB is possible, but capital AB goes to A is not possible. ये याद रखना. मींस की रिप्लेसमेंट की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा एक वेरिएबल ही चाहिए. ठीक है बेटा. इसकी सेकंड एग्जांपल ये रब कर दूं. एग्जांपल नंबर 2. Example number 2 is AC goes to capital A. AC goes to capital A. So here we are having, जब मैंने A को कंपेयर करा A के साथ, ये वाली वैल्यू आई मेरी 5 की. लेफ्ट कंटेक्स्ट इज कैपिटल A, राइट कंटेक्स्ट इज null, and replacement string is also null. So ulti V is used for null sign. So for this example, your right context and replacement string is null, because you are not given with right hand side. ठीक है. So capital AC goes to capital A. इसका मतलब क्या है? A और A सेम हो गया. phi की वैल्यू क्या है? A means ये आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट है. This is your right context, and C goes to null is a replacement string. C goes to null is a replacement string. Am I clear? बेटा दोनों एग्जांपल क्लियर हैं? यस सर. चलिए आगे टाइप 2. सर साइन क्या सर? हाँ जी. ये सर साई है जो ये नल कैसा आएगा? ये ए नहीं आएगा? ये भी बेटा उल्टा A मैंने कट थोड़ी ना करा हुआ है, ये खाली है. C goes to something, इधर कुछ भी नहीं है, ये खाली है. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो C की तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए वहां पे नल लिखा है. नहीं समझ आई सर, बात? साई पे ये हाँ? साई इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर इसके वाला ऊपर वाला साई हाँ, ये फाई है, कैसा आएगा? जाई है. जाई हाँ की भी जी. कोई वैल्यू नहीं ना गिवन है, यहाँ पे कोई और कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे खाली है. ये भी कैपिटल A जो है वो एक्ट कर रहा है फाई, एक्ट कर रहा है रिप्लेसमेंट वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड, रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग की लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपकी खाली है. दैट इज व्हाई C गोज टू नल. C गोज टू नल, कुछ नहीं है. नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी टाइप 1. टाइप 1 क्या होती है? तो इसका सिंटैक्स भी सेम है टाइप 0 के जैसा. इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ phi a xi goes to phi alpha xi is called type 1 production where alpha is not equal to null. इसकी कंडीशन है अल्फा की वैल्यू नल नहीं हो सकती है. जबकि टाइप 0 के अंदर अल्फा नल कर दिया था. Here we have alpha is not equal to null. टाइप 0 के अंदर आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू नल ले ली थी, ठीक है ना. जो मैंने सेकंड एग्जांपल करवाई है उसके अंदर अल्फा नल था, लेकिन टाइप 1 के अंदर अल्फा नल नहीं हो सकता है. बंद करती हुई मैं बोलिए. सो दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. इसका दूसरा नाम क्या है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. जैसे टाइप 0 को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल है जैसे इसकी कैपिटल a grammar which is given to you on the board is
So when we compare this A with this A, this is your phi. Afterwards, capital A goes to BCD is a replacement string, and Xi is BCD. So your right context, this is your left context, and this is your replacement string. ठीक है? इसकी सेकेंड एग्जांपल के अंदर जैसे लिखा हुआ है, कैपिटल A goes to AB. तो ये वाली आपकी जो है यहाँ पे ना तो फाई है ना तो जाई है, ये दोनों नल्स हैं, बट A goes to AB is a replacement string. A goes to AB is a replacement string because replacement string अल्फा की वैल्यू नल नहीं हो सकती इस केस के अंदर. अल्फा इज नॉट इक्वल टू नल इन केस ऑफ टाइप 1 ग्रामर. समझ आया? बेटा समझ आ गया? यस सर. सर अगर AB to A हो तो? हाँ जी, अगर ये रिवर्स हो? बेटा ऊंचा बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं शिवम बोल रहा हूँ. हाँ बताइए शिवम. सर जैसे A to AB है, ये A goes to AB है, बिल्कुल ठीक है. अगर AB goes to A हो तो? अगर कैपिटल AB goes to स्मॉल a हो, एक मिनट. यस सर. कैपिटल goes to A, B go ये बोल रहे हो? यस सर. कभी भी नहीं होगा बेटा, ये कभी भी नहीं होगा. ओके सर. ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग हमेशा एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे दो आ रहे हैं. ओके सर. ठीक है, कंस्ट्रेंट है, नहीं बदल सकते सर. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप 2 ग्रामर. सो टाइप 2 ग्रामर, so this production is of the form of A goes to alpha. Type 2 grammar, A goes to alpha, where capital A belongs to variables and alpha belongs to variable union sigma का star. Where star means iteration, any number of time. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, we are having the basic syntax that is A goes to alpha, where capital A belongs to variables and alpha belongs to variable union sigma का star. Here star means any number of time, means iteration. ठीक है, तो इसका जो syntax है, it will be having same syntax as that of type 3. लेकिन what is the difference between these two? Let's check. तो इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्योंकि इसके अंदर ना तो फाई है ना तो जाई है, और इसको बोला जाता है बैकर्स नोर फॉर्म. ये याद रखना बेटा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर Backus nor form, because it does not have any phi or xi. That is why this is called context free grammar. तो इसकी एग्जांपल देखते हैं. इसकी फर्स्ट एग्जांपल है S goes to capital A small a. S goes to ASB. S goes to ABC. तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं इसकी, 1, 2 और 3. इसको ध्यान से समझना. अब ये क्या था? A goes to alpha, where A belongs to variables, so S is my variable, and alpha belongs to variable union sigma का star. Star means any number of times.
यहाँ पे अगर तो आपके पास वेरिएबल आ रहा है तो राइट हैंड साइड की वो पहली पोजीशन ऑक्यूपाई करता होना चाहिए, अगर वो किसी टर्मिनल के साथ आ रहा है। अगर टर्मिनल आ रहा है तो वो अकेला आ सकता है, ठीक है। या फिर मल्टीपल टर्मिनल्स कैन बी देयर, या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी देयर। ये सारी करेक्ट एग्जांपल्स हैं। अगर मैं लिखूंगा कैपिटल एस गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए, ये गलत है, ये टाइप 2 का पार्ट नहीं है। S goes to small a capital A small b, again this one is the wrong example, ठीक है। अगर वेरिएबल आना है तो it should have the first position at the right hand side. S goes to capital A small a, so capital A is occupying first position on right hand side. Am I clear? या फिर अगर टर्मिनल्स आने हैं तो टर्मिनल्स अकेला नहीं आ सकता, वो मल्टीपल आ सकते हैं। अगर वेरिएबल्स आने हैं तो अगेन वेरिएबल्स अकेला नहीं आएगा, वो मल्टीपल आ सकते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट लास्ट वन इज टाइप 3 ग्रामर। सो a language generated by type 2 is called context free language, ठीक है। a language generated by type 2 grammar, a language generated by context free grammar is called context free language। ये याद रखना, पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स का। to define context free language, तो वहां पे आपको आंसर करना है the language generated by type 2 grammar or context free grammar is called context free language। and last one for today, type 3। ये पेपर में 5 नंबर का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। explain the various Chomsky classification of languages, ठीक है। तो last one is this production is of the form of the syntax is same, A goes to alpha, where A belongs to variables and alpha belongs to V and union sigma ka star. Now how this is different from type 2? Let's check. First of all, it is called regular grammar. इसका दूसरा नाम क्या है? Regular grammar। कई बुक्स के अंदर ग्रामर के स्पेलिंग ए के साथ है, कईयों के अंदर ई के साथ है, तो दोनों ठीक है, ठीक है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइप 2? उसके अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर पहला एलिमेंट क्या था? राइट हैंड साइड पहला एलिमेंट था वेरिएबल, इसके अंदर टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आ जाएगी S goes to small a capital A, और दूसरी एग्जांपल आ जाएगी A goes to खाली A। अगर तो टर्मिनल आना है तो वो अकेला आएगा, किसी के साथ नहीं आ सकता है। ये दोनों करेक्ट हैं। और इसकी रॉन्ग एग्जांपल्स हैं S goes to एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये आपका टाइप 2 का पार्ट था, ये भी टाइप 2 का पार्ट था, इसके अंदर गलत है। हाउ दिस एग्जांपल इज डिफरेंट, हाउ दिस टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइप? इन टाइप 2 वी आर हैविंग फर्स्ट एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड इज वेरिएबल, बट इन दिस केस द फर्स्ट एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड इज टर्मिनल। अगर तो टर्मिनल आ रहा है तो इट शुड ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड फॉलोड बाय सेकंड एग्जांपल। अब सिंगल वाला टर्मिनल जो है A goes to small a, वो टाइप 2 के अंदर नहीं कवर करा रहा, वो टाइप 3 के अंदर कवर होता है। योर चॉम्स्की क्लासिफिकेशन इज फिनिश्ड, ठीक है। आफ्टर दिस आपको एक डायग्राम बनानी होती है पेपर में, वो डायग्राम देख लो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो वो स्टार क्या है?
बेटा स्टार का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक से ज्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे कैश गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो यहाँ पे क्या वेरिएबल्स की रेपिटेशन हो रही है ना, एक से ज्यादा आ रहे हैं, ये स्टार है। स्टार मीन्स आइट्रेशन, लूप, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। Last one for today is, Excuse me, sir. how automata and languages are related. How सर टाइप automata- क्वेश्चन में मेंशन होंगी? हाँ जी, सर क्वेश्चन में टाइप्स मेंशन होंगी कि नहीं? सर जो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी? नहीं बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो आपको सारी टाइप एक्सप्लेन करनी है विद एग्जांपल्स। थ्योरेटिकल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा आर रिलेटेड विद ईच अदर। Last one for today, how languages and automata and are related with each other, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है with the help of this diagram. तो जो आपने तीन तरह की अभी पढ़ी है, we have just studied Chomsky classification, three categories of languages. Here type 0 is related with the TM. TM stands for Turing machine. TM is a Turing machine. So full-fledged chapter is there. Turing machine. Context sensitive grammar or type 1 grammar. It is related with LBA. LBA means linear bounded automata. Linear bounded automata. Next, context free grammar or type 2 grammar. It is related to PDA. PDA stands for push down automata. Push, again a full-fledged chapter is there, which we will discuss in later section. And last but not the least, regular grammar, type 3 grammar is related with FA. FA stands for finite automata. Clear है? तो ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनानी है, जब पेपर में आपसे पूछा जाएगा हाउ लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा आर रिलेटेड विद ईच अदर। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद एक टॉपिक पेंडिंग है हमारा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। टाइम आपका खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? इसमें कोई डाउट है डायग्राम में तो पूछ लीजिए। सर पीटी कर दीजिए। ये डायग्राम विजिबल है? KLP मिश्रा बुक की ना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, ये डायग्राम उसके अंदर अवेलेबल है, या आप गूगल के अंदर लिखोगे ना लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा, तो ये डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइप 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर व्हिच इज रिलेटेड विद द ट्यूरिंग मशीन,
TM stands for Turing machine. Context sensitive grammar or type 1 grammar, it is related with LBA, linear bounded automata. Next is CF, context free grammar. CF means context free grammar, which is related with PDA, push down automata. And last one is regular grammar. Regular grammar is FA, finite automata. Right? चलिए, थैंक यू वेरी सर मच। टीएम किया सर टीएम किया ट्यूरिंग ट्यूरिंग मशीन टीएम लिखे हुआ है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ट्यूरिंग मशीन। LBA का लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, PDA का जो पुश डाउन ऑटोमेटा, FA का फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, शुक्रिया। Thank you, sir.